Obviously it is B, under a pile of dry grass, under a haystack or something like that. So this is not complicated English. This is class 5-6 level English, elementary English. Now it is written in this passage, it says he fell asleep because he got tired. Options are he fell asleep because A, he was exhausted, B, he was all alone. Obviously because he was exhausted. You are making a big song and dance about questions like this. Will you say tomorrow, Mr. Prakash, you want to be in the civil services, will you say you should not even know the alphabets? It's not about alphabet, Arnab. It's virtually like that. No. It's not about alphabet. I'll say one thing first. Foreign delegations. I love to speak in Hindi because most of the people of Indians understand Hindi, 11 states. We don't become an IAS just to meet with foreign delegations. Sir, मैं जमुई जिले से हूँ और आप जानते हो जमुई जिला कहाँ पर है। तमिलनाडु सर, how about Tamil how about Kerala, how about आप मेरी बात सुनो। मैंने जमुई का नाम इसलिए लिया क्योंकि मैं इंडिया के मोस्ट नेक्सलाइट अफेक्टेड एरिया से हूँ, मैं उस रेड कॉरिडोर से हूँ। 67 में 2 आदमी ने शुरू किया था और आज वो पूरी दुनिया में फैल गया है। मैं हिंदी के लिए नहीं, मैं वो 22 लैंग्वेज के लिए आया हूँ। क्यों नहीं 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो सकता है? फर्स्ट। सेकेंड थिंग, अगर इंग्लिश इतना कंपलसरी है तो जब हम ट्रेनिंग आप देते हो तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आप ट्रेनिंग देते हो तो एक लैंग्वेज की ट्रेनिंग आप लवासना में क्यों नहीं दे सकते? आप हर गांव तक कंप्यूटर नहीं पहुंचा पाए, आप हर गांव तक इंग्लिश नहीं पहुंचा पाए और आपने इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया है कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन में। जिस चीज की जरूरत होती है उस चीज की आप ट्रेनिंग दे सकते हो अपने ऑफिसर्स को। अगर मानिए किसी को फ्रांस भेजना हो तो आप पहले उनको थोड़ा सा फ्रेंच सिखाते हो, अगर किसी को जापान भेजना हो तो आप पहले थोड़ा सा जापानीज सिखाते हो। अगर इंग्लिश इतना कंपलसरी है और काम को करने के लिए तो आप लवासना में 3 महीने का एक सेशन रखिए, क्योंकि हर गली हर चौक में एक कोचिंग सेंटर है जहां पर 3 महीने में इंग्लिश सिखाई जा सकती है। वो बच्चा जो आईएएस बन चुका है 3 महीने में क्यों नहीं सीख सकता? सर मेरी 2-3 let me complete. When you say on the Google Translator, how they translate? That's a separate subject. It appeared in one of the leading newspapers coming from South, national newspaper. You're changing the subject now. Steel plant. You're changing the subject. Steel plant is Google translates steel plant as lohe ka pauda. Now how does a person answer that? Sir, these are the issues which is being faced. Those children who are coming from a Hindi heartline or otherwise also. You see now. So we need to correct the system which has been imposed in 2011. Maybe the content or the idea could be brilliant, that they must have a management skill, and that needs to be tested. So Mr. Siddharth Singh, I really, suppose I want to take for granted. So these things are being looked at by the government, and the government will come up with a structured response which we'll be doing in a 1 week's time. Siddharth, 1 minute, Rajesh, before you come in. Siddharth, let me assume for a minute that Siddharth Singh is an honest man. Let me assume for a minute that Siddharth Singh believes in what he is saying. No, don't assume I am. Let me further assume that Siddharth Singh is not just another politician putting up another act. Siddharth Singh has to tell me where he was between 2011 and July 2014. Yeah. Where were you? Arnab Goswami. I know my name. I know my name. You tell me what you were doing. This entire issue became a bombshell. This issue came rocking. This is how you describe the issue. Bombshell. High Court came in. No, and you see, then the central government, the problem is with the central government, they take a decision, then a PIL and High Court gives a judgment, then on the basis of that they form a committee, Verma committee, they give a 3 months time, I would urge the Verma committee doesn't give a report, the government is not bothered. When we come in the government, we are faced with this crisis, which we are trying to resolve in a very short period, and we have asked for a 1 week's time. I urge you to consider the facts. Yes, Brajesh, I am coming to you next. I urge you to consider the facts and consider the language you have used. I urge you in the course of the next 30 minutes to take back the word bombshell which you just used, because to describe a sensitive subject as a bombshell may so work for you politically. You may have revealed your mind.
But that means you want to use these poor students for your political advantage. Brajesh Kalapa responding to Brajesh Kalapa is responding now. No, there is no political advantage. Everything cannot be on Times Now political advantage. And Times Now cannot continue saying, do not politicize the issue. Languages. Certainly you are politicizing by pulling us into it and saying you were silent. It was the central government under UPA which took a decision. Gentlemen, one at a time. Brajesh Kalapa. Yeah, you see, there are enough 22 languages who are competing against English, and you will realize that a vast majority of India speak these 22 languages and very few people speak English. It has always been the effort of the Indian National Congress to bring more and more people into the mainstream. This is the reason why the Indian National Congress took steps Mr. in the very Karappa, first it was your place doing. to remove London, to remove London from the ICS system. One, then we increase the age of the limit from 21 to 24 and then to 26. And today we have tried to bring every group possible to be able to compete the examination. की तरफ से की गई है, उसके बाद बचता क्या है आपके पास कि आप इसको जारी रखें? देखिए, मैं 2-3 चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं कि सीसेट जो है वो 400 मार्क्स का नहीं होता है। 200 मार्क्स का होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर 1 होता है जिसको जनरल स्टडीज कहते हैं, प्रीलिम्स 1, और एक पेपर 2 होता है जिसको हम सीसेट कहते हैं। और वो भी सीसेट यूपीएससी ने यूज नहीं किया था, ये मीडिया का दिया हुआ टर्म है, उसको प्रीलिम्स 2 कहते हैं। प्रीलिम्स 2 का जो सिलेबस है वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं, हम सभी छात्रों के अकॉर्डिंग। प्रारंभिक को आप भी प्रीलिम्स बोल रहे हैं, आप हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। आप मेरी बात समझिएगा, हम प्रारंभिक और प्रीलिम्स में इंग्लिश और हिंदी के अगेंस्ट में या ये भाषाई वॉर नहीं कर रहे हैं। मैंने शुरुआत से ही वर्ग संघर्ष कहा था और अभी भी मैं इसको वर्ग संघर्ष कर रहा हूँ कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड परीक्षा जो एप्टीट्यूड की हो रही है वो नहीं है। कैसे, मैं इसको अभी प्रूव करता हूँ। देखिए, जो हमारा एप्टीट्यूड का स्तर है पेपर का, वो कैट के स्तर से काफी नीचे का आता है। और जो भी बच्चे कैट के पेपर में 95 परसेंटाइल स्कोर करते हैं, वो बच्चे 80 क्वेश्चन में 77, 78, 75 स्कोर करते हैं और उसको 2.5 मार्क्स से गुणे किया जाता है। आपको परेशानी जिस विषय से थी वो अंग्रेजी थी, जो अंग्रेजी में सवाल आ रहे हैं। नहीं, लोगों ने समझने में गलती करी, वो एक फैक्टर था। यूपीएससी ने क्राइम करा था कि उत्तरी खंबा इक्वल टू नॉर्थ पोल था, स्टील प्लांट इक्वल टू लो पौधा था। तो सारी गलतियों में ये भी एक गलतियां थी जिसको यूपीएससी ने सिर्फ लॉलीपॉप हम लोगों को देने के लिए सिर्फ अंग्रेजी की समस्या को पकड़ा। समस्या यहाँ यह था कि पहले जो बच्चे जनरल स्टडीज में हायर स्कोर करते थे, ऑप्शनल में हायर स्कोर करते थे, वो बच्चे मेंस लिखते थे। आज मेंस का स्तर गिर चुका है। कारण यह है कि जनरल स्टडीज बेस्ड पेपर प्रीलिम्स नहीं रह गया है, वो एप्टीट्यूड बेस्ड रह गया। हम एप्टीट्यूड के अगेंस्ट में कभी नहीं रहे हैं। अलग अलग सर्विसेज के लिए अगर अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए अलग अलग पेपर ले सकते हैं। आप मेरी बात सुनिएगा पहले। फर्स्ट सेकेंड थिंग क्या है कि एप्टीट्यूड में अगर आप इसको तवज्जो दे रहे हैं तो 75 इंटू 2.5 होता है। आप एप्टीट्यूड को क्वालिफाइंग पेपर बना सकते हैं, 30 मार्क्स का, 35 मार्क्स का, 40 मार्क्स का। आपने जनरल स्टडीज इक्वल टू एप्टीट्यूड कर दिया है। तो जिस पैटर्न को लागू किया और उसके जो नतीजे हैं वो इस रूप में जरूरी हैं, क्योंकि जिस तरह से शैलजा जी ने बताया कि आईएएस बनकर परीक्षा पूरी पास करने के बाद जो ऑफिसर्स आते हैं उनमें वो योग्यता नहीं होती है जिसकी जरूरत है, और इसीलिए इस पैटर्न को चेंज किया गया है। तो ऐसे में क्या परेशानी है? इस बात को क्या स्टूडेंट समझना नहीं चाहते हैं कि देश की जो सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है उसमें वाकई में ऐसे विद्यार्थियों के पास होने की जरूरत है जो सबसे ज्यादा सक्षम हो, समझदार हो? नहीं, जो मूल समस्या है उस चीज पर कोई सोच नहीं रहे हैं। जो मूल समस्या है वो ये है कि देखिए, मैं जो रिप्रेजेंटेशन अभी अपना कर रहा हूं वो 22 लैंग्वेज के उन ग्रामीण लोगों का कर रहा हूं जो चेन्नई में नहीं रहते। मैं उन तमिलियन का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूं जो चेन्नई में रहते हैं, मैं उन तमिलियन का कर रहा हूं जिनको इंग्लिश नहीं आती है। आप करोल बाग के पूसा रोड में चले जाइए, वहां आपको हर दूसरे तीसरे दिन आंध्र प्रदेश से और तमिलनाडु से आते हुए लोग दिखाई देंगे। आप उनके चेहरे देखो और आप अपने छत्तीसगढ़ के किसी ग्रामीण महिला के और ग्रामीण लोगों के चेहरे देखो, आप बिहार के, उत्तर प्रदेश का, सबका चेहरा सेम लगेगा आपको। वो आर्यन, द्रविडियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन नहीं, वो आपको गरीब और ग्रामीण नजर आएगा। पहली बात। दूसरी बात, ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट की बात है, हमारी जो शिक्षा पद्धति है जो मैक्सिमम पॉपुलेशन को कवर करता है उसके ऊपर बेस्ड यह एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है। तीसरी बात, हमारा जो देश है, मैंने